Hi friends, my name is Ajit Parvate, and in our last video that I already told you that I am going to conduct 12 videos on mutual fund distributor, this 5A module. So in this endeavor, this is the first chapter or the first video which I am sharing with all of you that today, and it start with chapter number 1, investment landscape. Okay, so first we need to understand what are the learning objective of this chapter number 1. Investor and their financial goals, saving or investment, different asset classes, investment risk, risk management and management strategies, behavioral bias in investment decision making, risk profiling, understanding asset allocation, do it yourself or taking professional help. Before going into these details, okay, first we need to understand what is the meaning of investment, why people do investment. Now, here are a few examples. People are pursuing, higher degrees to get a better job, then buying house for own, comfort, then buying luxurious car again to satisfy oneself, then family planning, then saving for to start a business at a later date, then foreign tours and travels, then retirement planning. All these are the different objective, we can call it as a financial objective. Here goals are different, but when with this financial objective, when we assign amount and timeline to it, then it becomes a financial goal. Okay, this is the difference between financial objective and financial goal. So can we derive it as some sort of a formula? Okay, so yes, when financial objective it is coupled with amount plus time period, then it is called as a financial goal. Now another important part, we need to assign to different financial goal. Now in life, as we talked about, that is investment into house and property, then buying car, family planning, then saving money for to do the business, foreign tours and travels, and retirement planning. But will it have a same importance all point of time? No. As per the time period, we need to categorize, we need to assign some time and some importance to it, and accordingly some financial goals becomes a responsibility, and they are the need of human beings. Then dreams and good to have, we can categorize into, as we can plan this into financial goals into 4 parts. That is immediate term, means up to 3 months period, that can be considered as an immediate term. Then near term, up to 1 year. Within 1 year, whatever requirement, that financial requirement that we do have, financial goals we do have, we can call it as the near term financial goal. Then up to 3 years to 5 years, that can be considered as a medium term financial goal, and above 5 years, that can be considered as a long term goal. So clearly from this bifurcation, we can consider retirement planning is a long term goal. Even buying a house property, that is also a medium term or long term goal. Okay, then planning for foreign tours, that can be considered as a medium term goal. As per the age and income level, we can categorize our financial goal into different these quadrants. We can do that. Now one more important part we need to consider, that is called as inflation. Okay, inflation means what? General price rise which happens in the economy, that is called as a inflation. So this immediate term and near term financial goals, it will not have a major impact of inflation on these two goals. Okay, when we are considering the medium term and long term goal, then definitely it will have a greater impact of inflation, with an example that I will explain. Now let's assume, okay, a kid is in 12th and his father is planning for his higher education after completion of graduation. Now let's assume after completing the engineering, the person want to go for to do the MS abroad. The present cost to do the MS in a present scenario, that would be around 50 lakhs of rupees. So father is doing a planning according to that 50 lakhs of rupees. But because of the inflation, after 4 years, we never know what the value, what will be the amount that will be required after 5 years. So if we will not consider the inflation into effect, then our planning will go haywire. So after 4 years, that cost could go up to, let's assume 56 lakhs of rupees, or let's assume 65 lakhs of rupees. So there is a shortfall, and we did a planning for only 50 lakhs of rupees. So there is a shortfall of 6 lakhs or 15 lakhs of rupees as per the that point of time, whatever will be the cost. So we need to take into consideration this inflation when we are planning for a medium term or long term period. Now let's assume for immediate term and near term, guy is in 3rd year engineering and next year he want to pursue, and right now he knows that he need a 50 lakhs of rupees.
So within 1 year, how much cost additional, cost that will be, that he will incur, or what additional cost that it will increase, or fees will increase. It will not increase manifold. Okay. It will increase by, 5 to 10% max to max. That can be arranged. So that's why inflation will not have a greater impact when we are doing a financial, when we are considering the financial goal for immediate and near term. But it will have a greater impact when we are considering for medium and long term financial goals. This again, I will explain what is a greater impact of inflation with an example. In our economy, for last almost more than 42 years, the general rate of inflation, average the rate of inflation was hovering around 7.60%. Okay, so I am considering, for a simple calculation purpose, I am considering at 8%. Now we will take an example. To maintain a certain life standard, minimum 15,000 is required for a family. So what the inflation will have impact on this 15,000 of rupees after 5 years. So that 15,000 rupees, the whatever standard of living that the family need to maintain, after 5 years, they will incur a cost of 22,040 rupees. And it's a big increase. After 10 years, to maintain the same standard of living, that family will need a 34,385 rupees. Isn't it big, guys? Yes. After 15 years, it will get threefold, that 47,583 rupees. And that's why I am telling you, inflation will have a greater impact when we are considering, cost part of it or expenses part of it. Now we will see the other side of it. We will have a amount of 1 lakh of rupees in our hand, and we have not invested it. We have kept it at home itself. What impact that we are having of inflation with this amount? Okay, whatever lump sum amount that we are having, after 5 years, that 1 lakh rupee will get depreciated to a level of 68,058 rupees. There is a fall of 32%, almost 32% in the value of purchasing power of this 1 lakh of rupees. After 10 years, the same 1 lakh rupee will value at 46,319 rupees, and after 15 years, it will value at 31,529 rupees. Means it will get depreciated by almost 68.5%. And that's the impact of inflation. So while doing the financial planning, or while considering the financial goal, or for funding the financial goal, we need to consider for medium term and long term the impact of inflation. It is extremely important. Now, second part, how to arrive at this figure that we have arrived at this. Okay, there is a simple formula, that is principal into 1.1 into R, that is rate of interest, and rate of inflation and N that is a number of years. Okay, so by using this formula, we can arrive at the different values. Now we need to consider the difference. What is the saving and investment? Okay, when we are talking about the saving, it first comes, that is the safety of money. And you might have seen, अगर आप घर में किसी छोटे बच्चे को अगर आप पैसे देते हो, तो वो क्या करता है, अपने पिगी बैंक में या मनी बैंक में जाके अपना पैसा डालता है। और जब कभी उसको कोई चीज लेनी होती है, ओके, किसी दोस्त का बर्थडे है या किसी घर में सिस्टर का बर्थडे है या और किसी का बर्थडे है, वो क्या कहता है, वो अपना मनी बैंक से पैसे निकालता है और कोई गिफ्ट लेके आता है। सेम हमारे मम्मी के पास, मम्मी पिताजी जैसे मम्मी को पैसे देते हैं या मम्मी शी अर्न्स, तो क्या करती है, घर में जनरली एक टेंडेंसी होती है कि घर में किसी बर्तन में, किसी डिब्बे में, किसी बर्नी में वो पैसा रखती है। और अब जब भी कभी अगर आपको पैसे की गरज पड़ती है, एंड इफ यू आस्क योर मनी टू गिव योर मॉम टू गिव सम मनी, ओके, वो कहीं से पैसे निकाल के आपको देती है। सो इन केस ऑफ एक्सीजेंसी, सो वी आर सेविंग अवर मनी, ओके, फॉर सेफ्टी ऑफ मनी टू यूज इट at a later date whenever there is an exigency of urgency. But this small amount what we are saving, after some time, investment and saving, it's not two different things. Okay, basically investment, saving is the first step of investment, and we can consider by using a formula, that is income minus expenses is equal to saving. ओके, जनरली जो सैलरी क्लास होता है वो क्या करता है, हर महीने का सैलरी जो आता है, पहले उसमें से जो खर्चा है वो खर्चा दे आर प्रोवाइडिंग फॉर ऑल दिस एक्सपेंसेस, और जो पैसा बचता है दे पुट इनटू अ बैंक और दे पुट इनटू सम डिफरेंट avenues where there is a safety, so that's why that is called as safety. लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये जो छोटा छोटा पैसा जमा होता है, जो सेविंग जमा होता है, and let's assume the amount got accumulated like 50,000 rupees, lakh of rupees, 2 lakhs of rupees, then they think about investment into some sort of different avenues. So that's why I said it is the process, it is the same process, there are two parts of same process, that is saving and investment. Now what is the difference between saving and investment? In saving, we are seeing for the safety of money. In investment, we are basically considering capital appreciation, or we are investing, or we are putting our money in some avenues
with the expectation to get a better returns, to get a profit. Example, 1 लाख रुपए आपने शेयर मार्केट में लगाया और आपको वही 1 लाख रुपए का 1,60,000 रुपए जो होता है, that 60,000, that is a capital appreciation. So saving and investment, it's a process, it is a part of the same process, that is invest, the first saving come and then investment come. लेकिन जब हम different avenues जो होते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, वो करने के पहले there are certain 7 factors which we need to consider. So to evaluate the investment, these factors need to be considered and extremely important. And out of that, first one is that is safety, then return, then liquidity, convenience, ticket size, taxability of income, and tax reduction. So first we will see safety. Now in safety, first thing, वॉट एवर दैट अमाउंट दैट वी हैव इन्वेस्टेड, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि क्या हमारा प्रिंसिपल सेफ है, और प्रिंसिपल सेफ रहने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमें रिटर्न कितना आएगा। रिटर्न कितना आएगा, ये रिटर्न, जब हम रिटर्न की बात करते हैं या जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सेफ्टी के साथ दूसरा वर्ड जो इमीडिएट अटैच होता है दैट इज रिस्क। तो रिस्क और सेफ्टी दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन है। जहां पे सेफ्टी है वहां पे रिस्क कम है, जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे सेफ्टी कम है। Okay, so they are inversely they are having a relationship of inverse relationship. Now दूसरा important part, that is return. Return is a main purpose of investment. हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज होती है कि हमें यहाँ से कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, कितना रिटर्न मिलने वाला है। रिटर्न इन टर्म्स ऑफ रेगुलर इनकम, रिटर्न इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन और कैपिटल गेन दैट वी कैन कंसिडर। मतलब हम फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, हमें ये एक्सपेक्ट होता है कि आप किसी बॉन्ड में डालते हैं जहां पे सपोज 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 1 लाख रुपए आपने डाला है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे साल के बाद 8,000 रुपए एज ए इंटरेस्ट के तौर पे मिल जाए। आप इक्विटी में डालते हो या आप म्यूचुअल फंड में डालते हो और आप 5 साल के लिए रखते हो, तो आपका ये एक्सपेक्टेशन होता है कि मुझे कम से कम 12% से तो एटलीस्ट रिटर्न मिले। सो दैट इज अ कैपिटल एप्रिसिएशन दैट वी कैन एक्सपेक्ट। ओके, जो हम एक एक चीज आगे जैसे जैसे जाएंगे उसमें हम लोग देखने वाले हैं। लिक्विडिटी, दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, how fast we can convert our investment into cash. Now जो different asset classes होते हैं उसमें ये liquidity vary होती है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, अगर आपने मंडे को सेल किया हुआ है तो क्या होगा, आप मंडे को सेल करते हो तो T+2 मतलब वेडनेसडे को शाम को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आपने मंडे को अगर मंडे का आपका इन्वेस्टमेंट रिडीम किया है म्यूचुअल फंड में, आपको फ्राइडे को शाम को आपके अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। लेकिन सेम चीज इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी लेना और बेचना दोनों प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, इट इज नॉट इजीली लिक्विडेट। ओके, यू कैन नॉट लिक्विडेट इजीली। और कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉपर्टी रियल्टी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इलिक्विड होता है, इमीडिएट यू कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू कैश। बट सोना आप कमोडिटी में आप इन्वेस्ट करते हो तो कमोडिटी आप सोना इमीडिएट बेच के पैसे इमीडिएट पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। So different asset classes में the liquidity, there is a trade-off between liquidity, okay, as well as lock-in period. यही आप अगर टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ELSS में there is a lock-in period of 3 years. आप इसमें डालते हो टैक्स सेवर FD में डालते हो there is a lock-in period of 5 years. आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, यूलिप में आप इन्वेस्ट करते हो, वहां पे भी 5 साल का लॉक इन पीरियड है। सो लिक्विडिटी वैरीज with the type of different asset classes. Now, fourth important part, that is convenience. Convenience means ease of selling as well as buying. कितना easily आप मार्केट में किसी कोई चीज परचेस कर सकते हो या सेल कर सकते हो, उस पे भी ये निर्भर करता है कि किस असेट क्लास में आपको इन्वेस्ट करना है। Now that varies from asset to asset. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने इन्वेस्ट कर दिया है, आपने किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया है, क्या आपको उसकी 5 साल के बाद की क्या प्रेजेंट वैल्यू है ये आपको पता चलता है क्या आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप आपके इन्वेस्टमेंट को एक्सेस कर सकते हो? क्या आप उसका क्या वैल्यू चल रहा है, क्या मार्केट रेट है, क्या आप पता कर सकते हो? क्या आपके पास कोई ऐप या कोई आपको ऐसी जानकारी आपको मिलती है? तीसरा, अगर आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो क्या आपको टाइम टू टाइमली आपके अकाउंट में जो हाफ ईयरली इंटरेस्ट वारंट्स होते हैं, हाफ ईयरली इंटरेस्ट जो होता है वो क्या टाइम टू टाइम आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है? दिस इज कॉल्ड एज convenience. Now another fourth part, that is ticket size. As per the different asset classes, there is a different minimum ticket size that is required. आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन यही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो लाखों में करना पड़ेगा या करोड़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इंडिविजुअल जो कैपेसिटी होती है उस पर भी निर्भर करता है कि आपको किस असेट क्लास में जाना है। ओके, एज पर द इनकम जनरेशन ऑफ द पर्सन, that depends on his financial capacity also, to which product that he want to go, depending on the ticket size as well. Okay,
नाउ सिक्स पार्ट दैट इज टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम। कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि जहां पे आप अगर रिडीम करना है तो यू हैव टू पे द टैक्सेस ऑल्सो। लाइक अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करते हो और एक साल में अगर आपने आपका जो इक्विटी है वो आपने सेल कर दिया तो इट विल अट्रैक्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। एक साल के ऊपर है तो इट विल अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड इट विल हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन अ return on investment. Then your investment tax that is also dependent on the time period as well. Okay, कि आपने अगर आपको इक्विटी में करते हो तो एक साल के ऊपर जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म, लेकिन यही आप डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे 3 साल मिनिमम आपको रखना पड़ेगा। 3 साल के बाद दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। यही अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इक्विटी में आपको एक साल में ही अगर आप रिडीम करते हो तो दैट विल अट्रैक्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और एक साल के ऊपर करते हो तो इट विल अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। सो दिस टू पार्ट दैट नीड टू बी कंसिडर हैविंग अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन return on investment, and simultaneously time period that need to be considered for taxability of income. And the last, that is tax deduction. There are some instrument or some investment options जहां पे आप invest करते हो तो ऑटोमेटिकली सेक्शन 80C से जो बेनिफिट है वो आपको मिलता है। मीन्स आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, आप अगर इस एवेन्यू में इन्वेस्ट करते हो सो ऑटोमेटिकली योर टैक्सेबल इनकम दैट ऑटोमेटिकली विल गेट रिड्यूस डाउन। तो आपको जो टोटल टैक्स पे करना है दैट वैल्यू गेट रिड्यूस डाउन। सो ऑटोमेटिकली कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है बिकॉज ऑफ दिस टैक्स डिडक्शन ऑटोमेटिकली दैट विल इंक्रीज, दैट विल गो अप। ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जब आप इन्वेस्ट करते हो जहां पे सेक्शन 80C के बेनिफिट्स है, लाइक इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, देन यूलिप में आप इन्वेस्ट करते हो, या टैक्स सेवर एफडी में आप इन्वेस्ट करते हो, या आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो, या बाकी किसी और इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करते हो, यहाँ पे एक चीज जो ध्यान देने की जरूरत है और वो है उसका टाइम पीरियड, and second thing, tax deduction. In case of ULIP, there is a lock-in period of 5 years. In case of tax saver FD, there is a lock-in period of 5 years. But in case of ELSS, there is a lock-in period of only 3 years. So there is a trade-off that we need to consider between liquidity and tax deduction that need to be considered. Yes. Then we need to consider what are the different asset classes. हमने तो जो factors थे, जो अलग-अलग investment options जो है जहां पे evaluate करना है तो वो तो 7 हमने factors तो देख लिए, लेकिन अभी asset classes क्या है? तो रियल इस्टेट है, कमोडिटीज है, फिक्स्ड इनकम है, इक्विटीज है। रियल इस्टेट मींस जहां पे आप एक्चुअली फिजिकल असेट्स में आप इन्वेस्ट करते हो, लेकिन रियल इस्टेट का एक सबसे बड़ा ये है कि आपकी प्रॉपर्टी का लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका लोकेशन अगर प्रॉपर है तो रियल इस्टेट में वैल्यू अपने आप बड़ी अच्छी खासी मिलती है। लेकिन दूसरी रियल इस्टेट की खासियत यह है कि देयर इज अ इलिक्विड इन्वेस्टमेंट। ओके, आप इमीडिएट उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। okay, then divisibility, that is another big concern for real estate। और रियल इस्टेट में जब आप परचेस करते हो देयर आर लॉट ऑफ अदर कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है, ब्रोकरेज चार्जेस पे करना पड़ते हैं, अलग अलग जो चार्जेस होते हैं रियल इस्टेट में। इन्वेस्ट जब करते हैं तो रियल इस्टेट के साथ ना कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी होता है। पहली चीज, रियल इस्टेट लोकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, इट्स अ इलिक्विड इन्वेस्टमेंट, इमीडिएट आप उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। देयर आर अदर कॉस्ट विच आर अटैच्ड टू द रियल इस्टेट, लाइक स्टैम्प ड्यूटी होती है, ब्रोकरेज चार्जेस होता है, लीगल फीस होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ता है। सो व्हाइल कैलकुलेटिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट, these small factors, the recurring expenses, that also need to be considered into while calculating the return on investment। कमोडिटीज में फेवरेट है जनरली सबको जो पता होता है, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर, या बाय कर सकते हो, कभी भी आप सेल कर सकते हो। फिक्स्ड इनकम में यहाँ पे इट्स लाइक अ डेट, जहां पे आप किसी को आपने पैसे दिया हुआ है एंड a fixed return which you are getting on annual basis। okay, equity again, you are owning, you are having ownership in some sort of a business, that is called as equity। अब ये चारों असेट क्लासेस में एक खासियत ये है कि रियल इस्टेट, कमोडिटीज एंड इक्विटी में यू बिकम अ ओनर ऑफ द असेट। जब आप सेल परचेस करते हो तो आप उसके ओनर बनते हो, लेकिन फिक्स्ड इनकम में यू आर लेंडिंग योर मनी टू सम बोरोवर्स। दैट इज द डिफरेंस। नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स। रियल इस्टेट में फिजिकल असेट्स, आप रेसिडेंशियल असेट ले सकते हो, कमर्शियल फाइनेंशियल असेट ले सकते हो। कमर्शियल फाइनेंशियल असेट मतलब आपने कोई गाला ले लिया, कोई शॉप ले लिया और वो आपने किराए पे दे दिया, सो वहां से आपको रेंटल इनकम आता है, इस प्रकार भी हो सकता है। या आप रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो।
ये रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये क्या है, हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर में रोल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, उसमें हम लोग वो देखें। अपार्ट फ्रॉम दैट कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड फंड, देन कमोडिटी ईटीएफ लाइक गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ व्हिच इज राइट नाउ करंट ट्रेंड इन द मार्केट, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देन इक्विटी, blue chip companies, mid cap companies, small cap company, unlisted company, foreign stock, equity mutual fund, exchange traded fund, index fund, all these are the different type of equities. They are just nomenclature that has been given over here. Okay, इसमें आप invest कर सकते हो। hybrid asset class, hybrid मतलब it's a combination of equity as well as debt. Okay, इसको multi asset भी कहा जाता है। Okay, it's a hybrid mutual fund और multi asset fund, इसमें भी आप invest कर सकते हो। Now these are the different type of fixed income। आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट रख सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट रख सकते हो, आप एंडोमेंट पॉलिसी ले सकते हो, मनी बैक पॉलिसी ले सकते हो, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, रिकरिंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस, देन कंपनी फिक्स डिपॉजिट, डिबेंचर्स, बॉन्ड, डेट म्यूचुअल फंड, दीज आर द डिफरेंट एवेन्यू। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, ये पूरे जो ऑप्शंस है, ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक निश्चित अमाउंट ऑन ईयरली बेसिस यू कैन गेट दैट अमाउंट एज एन इंटरेस्ट। ओके, फिर आपका ऑप्शन है, आपको मंथली लेना है, आपको क्वार्टरली लेना है, हाफ ईयरली लेना है या एनुअली लेना है, जो इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली यू कैन टेक दैट। ओके, नाउ दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट। हमने पहले देखा था कि व्हाट आर द फैक्टर्स टू इवेल्युएट द इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट में क्या क्या रिस्क है, जैसे सेफ्टी की बात करी थी, दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव टोल्ड यू। ओके, वी विल सी द व्हाट आर द रिस्क अटैच्ड टू इन्वेस्टमेंट। So these are the 6 risks which are attached to investment. First one is inflation, liquidity, credit risk, market risk, price risk, and interest rate. So inflation risk, जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको एक स्लाइड के माध्यम से आपको समझाया था कि इन्फ्लेशन मीन्स इट्स अ जनरल प्राइस राइज व्हिच इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, सो ऑटोमेटिकली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट ऑल्सो वेरीज। एग्जाम्पल के तौर पे आई विल एक्सप्लेन दिस इन्फ्लेशन रिस्क विद एन एग्जाम्पल। हमने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है, फिक्स डिपॉजिट हमने किया 1,00,000 रुपए का, जहां पे हमारा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.5%। और अगर आज की बात करते हैं तो आज का जो इन्फ्लेशन का रेट है दैट इज अराउंड 7%। मीन्स एक साल के बाद आपको आपके फिक्स डिपॉजिट पे सिर्फ 6,500 रुपए का 500 रुपया मिलेगा, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो 7% से वेरी हो रहा है। मतलब जो आज 1,00,000 रुपए की जिसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू एक साल के बाद 1,07,000 रुपए होगी। और आपने जो इन्वेस्ट किया था उसने आपको रिटर्न जो जनरेट करके दिया है वो 1,00,000 का 1,06,500 रुपए। मीन देयर इज अ लॉस ऑफ 500 रुपीज। So your investment has not actually increased. It has not beaten up the inflation. Rather, there is a loss of 0.5% with respect to the inflation. So जब आप इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्ट आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि your investment return should always beat the inflation. Okay, that is most important part. Now second one is liquidity risk. जब आपने इन्वेस्ट कर दिया है, उसमें ये भी देखना जरूरी है, 3 चीजें इन्वेस्टमेंट के चीजें हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, ओके, हाउ मच रिटर्न दैट यू वांट। सेकंड वन, फॉर हाउ मच पीरियड दैट यू वांट टू इन्वेस्ट, एंड हाउ मच रिस्क दैट यू आर गोइंग टू टेक। लेकिन क्या होता है, हम रिटर्न देखते हैं, हम रिस्क देखते हैं, लेकिन कब हमें अपने पैसे रिक्वायर्ड है वो चीज नहीं देखते हैं। एंड लेट्स अज्यूम यू इन्वेस्ट इनटू 5 years बॉन्ड। आपने 5 साल के किसी यूलिप पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दिया और आपको 3 साल के बाद ही पैसे की गरज पड़ गई, and you have invested all of your amount into that policy. You cannot take out that money after 3 years because there is a lock in period of 5 years. You cannot take out that money. तो ये आपको जब आप इन्वेस्ट करते हो तो 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, टाइम पीरियड, टैक्सेबिलिटी एंड पेनल्टी। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, आपको 6 महीने में रिक्वायरमेंट, आपको 1 साल का आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, आपको 6 महीने में ही आपके पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप रिडीम करते हो तो रिडीम करने के टाइम आपको क्या होता है, यू हैव टू पे दैट पेनल्टी ऑफ 1%, दैट इज देन टैक्सेबिलिटी। आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया है, आपको पहले ही पैसे विड्रॉ करना है, 1 साल के पहले ही आपको विड्रॉ करना है, तो विड्रॉ करने के लिए जो भी आपको गेन हुआ है उस पे इट विल अट्रैक्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। जब आप इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट करने के करते टाइम आपको ये लिक्विडिटी रिस्क जो है ये भी आपको समझना बहुत बहुत जरूरी होता है। ओके, देन थर्ड पार्ट दैट इज क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क मींस आपने किसी को पैसे दिया हुआ है, ओके, इन द फिक्स्ड इनकम दैट वी हैव सीन, यू हैव केप्ट अ कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट। आपने किसी कंपनी में फिक्स्ड डिपॉजिट रख दिया है, बट वेदर दैट कंपनी इज सेफ, are they able to do they have ability to return your money, or do they have intentions to repay back your principal as well as interest?
that is extremely important and that need to be considered, and for which credit rating that is there. So जहाँ पे सेफ सिक्योर ट्रिपल ए जो रेटिंग है, ऐसे ही कंपनी के फिक्स डिपॉजिट में वी नीड टू इन्वेस्ट. ओके, सो देयर इज अ क्रेडिट रिस्क दैट वी नीड टू कंसिडर. नाउ फोर्थ वन, दैट इज मार्केट रिस्क. मार्केट रिस्क में देयर आर टू पार्ट्स. वन, दैट इज जनरल इकोनॉमी. जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हो रहा है, it has a greater impact on the entire global industry. Everywhere it is an impact. तो हमारे इंडिया में भी, हमारे यहाँ पे भी उसका इम्पैक्ट होगा, हमारे इकोनॉमी में भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है जो हम देख रहे हैं. बट यही अगर ऑयल प्राइसेस के मूवमेंट होता है, ऑयल प्राइसेस अगर मतलब नीचे जा रहे हैं, तो अगर आपने किसी पेट्रोलियम कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, सो डेफिनेटली दैट प्राइसेस विल नॉट गो अप, इट विल गो डाउन ओनली. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज कंपनी स्पेसिफिक. एंड व्हेन जनरल इकोनॉमी, so it's a macro and macro. These are the two parts that we can consider in market risk. जहां पे जनरल कंप्लीट इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करता है, और जहां पे कंपनी स्पेसिफिक और इंडस्ट्री स्पेसिफिक पे जब इम्पैक्ट करता है. सो these two factors that we need to consider, okay, in market risk. Then price risk, this is very specific to company. आप किसी एक स्पेसिफिक कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो कंपनी का परफॉर्मेंस किस प्रकार से है. Whether company is performing very well, so definitely that price will go up. If company is not performing very well, so price will go down only. Okay, if there is adverse news about that company, then definitely that will have a greater impact on the price, and that's why price risk also need to be considered. Then interest rate risk. This is a general change in the economy. Every quarter, RBI in the monetary policy, some changes that they declares every quarter. Okay, so it is having a general impact on the interest rate in the economy. तो क्या होता है, लेट्स अज्यूम आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, अभी आपने इन्वेस्ट किया 6 महीना पहले, तो 6 महीना पहले अराउंड 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट था. ओके, लेकिन अभी जैसे 0.5% आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट हैज इंक्रीज टू आइदर 6.5 और 7%. तो जिन्होंने 6 महीने पहले इन्वेस्ट किया था, दे आर एट लॉस बिकॉज दे विल गेट ओनली 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट. लेकिन जिन्होंने आज 6 महीने के बाद जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, दे आर गेटिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7%. So this type of changes that is happening, that is called as interest rate risk. And there is always inverse relationship between interest rate and bond prices. ओके, जहां पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है वहां पे बॉन्ड प्राइसेस डिक्रीज होते हैं, और जहां पे इंटरेस्ट रेट डाउन होता है, मतलब डिक्रीज होता है, वहां पे बॉन्ड प्राइसेस इंक्रीज होते हैं. ओके, सो दैट इज अ इंटरेस्ट रेट रिस्क. हाउ टू मैनेज दिस रिस्क. हमने तो रिस्क फैक्टर्स टू इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट हमने देख लिया. देन हमने क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है वो भी देख लिया. व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट डिफरेंट असेट क्लासेस है वो भी हमने देख लिया. नाउ रिस्क के पार्ट भी देख लिया. हाउ टू मैनेज दिस रिस्क. सो देयर आर 3 स्ट्रेटेजीज. वन इज टू अवॉइड, जहां पे रिस्क है तो वहां पे इन्वेस्ट ही नहीं करना है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है. लेकिन इट इज हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट. अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा. एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज दैट इट नीड टू बीट द इन्फ्लेशन. अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और वो इन्फ्लेशन बीट नहीं करता है, सो योर वेल्थ विल नॉट विल इंक्रीज विद द पेस ऑफ द टाइम. इट विल नॉट इंक्रीज, इट विल रादर गो डिक्रीज, इट विल डिक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. So avoid is not a base strategy. Okay, sometimes it is act as a good strategy, but it is not always as a good strategy. Then take a position to benefit from some event and development. You come to know that in general economy, अभी आपको पता चल गया है कि since India is giving more thrust on Make in India project, and in defense also there is a huge boost that government is giving for investment into defense manufacturing. And they will buy indigenous products only, and simultaneously they are also giving some production link incentive also, PLI schemes also. You come to know about that, and accordingly you have searched some companies wherein they have increased their capitalization. They have increased, they have set up they did a expansion, so definitely their production is going to increase. You came to know that, and accordingly you invested into these companies. But ये कब कर सकते हैं, जब आपको इकोनॉमी का डीपर अंडरस्टैंडिंग है, कंपनी का नॉलेज है, आपको पूरे फाइनेंशियल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी समझ, मतलब इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक अप some benefit out of this development. It is generally not possible for all people. So what is the best route to invest into mutual fund? Okay, that is the best route for a layman. Now third one is that is diversify. हमारे यहाँ पे कहावत ही है, don't put all your eggs into one basket. तो आपको आपके सभी जो अंडे है एक ही बास्केट में नहीं डालने हैं. आपको अलग अलग पोर्टफोलियो में आपको इन्वेस्ट करना है, अलग अलग डिफरेंट असेट्स में आपको इन्वेस्ट करना है. उससे क्या होगा, जो आपकी रिस्क है दैट विल गेट डाइवर्सिफाइड, that will get reduced down. So these are the 3 different strategies
विच वी कंसिडर. ओके, नाउ देयर इज फनी पार्ट. जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में ना इमोशंस आते हैं, और इमोशंस दैट इज वेरी, इट इज वेरीज फ्रॉम वन टू वन पर्सन. हमारे यहाँ पे दूसरी कहावत है, जितनी व्यक्ति है उतनी प्रकृति है. हर एक की सोच अलग है, हर एक का थॉट प्रोसेस अलग है, हर एक की बनावट अलग है, तो अलग अलग सोचता है. लेकिन तीन चीजें बहुत कॉमन होती है. एक है ग्रीड, दूसरी है फियर, और तीसरी है होप. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर आर डिफरेंट बिहेवियर बायसेस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग. सबसे पहला है अवेलेबिलिटी यूरिस्ट. आपके दोस्त ने आपको बताया कि उसने फलाना फलाना कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसने एबीसी स्टॉक लिया हुआ है और एबीसी स्टॉक ने उसे एकदम तगड़ा रिटर्न दे दिया. बस आपने आव ना देखते दाव ना देखते आप भी उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो. बाद में तो पता ही आपको क्या होता है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अवेलेबिलिटी यूरिस्टिक. सेकंड वन इज कंफर्मेशन बायस. कई बार हमें जो लगता है, हम पहले इन्वेस्ट कर लेते हैं, हम पहले डिसीजन ले लेते हैं, और डिसीजन लेने के बाद फिर हम देखते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर मार्केट में न्यूज पढ़ते हैं, फिर पेपर में पढ़ते हैं, फिर जहां पे जो इन्फॉर्मेशन मिल सकता है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और अपने आप को समझाते हैं कि जो मैंने डिसाइड किया हुआ है दैट इज राइट. एग्जाम्पल के तौर पे, आप कोई बाइक लेने गए, आपने बाइक चूज कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया मुझे यही कलर की यही बाइक लेना है, और आप वहां से घर आ रहे हो. क्या होगा, आपको रास्ते में वही बाइक हर जगह पे दिखती है, वही ब्रांड आपको हर जगह पे दिखता है. दैट इज अ कंफर्मेशन बायस. ओके, आप डिसीजन पहले ले लेते हो, और टू प्रूव दैट डिसीजन देन यू अकॉर्डिंगली रिसर्च इट. दैट इज कॉल्ड एज कंफर्मेशन बायस. देन थर्ड वन है दैट इज फैमिलियरिटी बायस. फैमिलियरिटी बायस मीन्स आपका जो एक कंफर्ट जोन होता है, आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो या जिस सेक्टर में काम करते हो, आप उसी कंपनी में, उसी से रिलेटेड जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करते हो. एंड बाय डूइंग दैट यू आर लूजिंग आउट एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट टू गेट अ बेटर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स. एग्जाम्पल के तौर पे, कोई पर्सन है जो आईटी में काम करता है, ही विल इन्वेस्ट ओनली इनटू आईटी कंपनीज बिकॉज ही इज अवेयर अबाउट आईटी कंपनीज, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, दे आर डूइंग. But by investing into IT companies, he is losing out on the other opportunities by investing into other different companies. So he depriving himself from getting a better returns. That is called as familiarity bias. Now herd mentality, जिसको भेड़ चाल कहते हैं. सब लोगों ने आपको बताया कि अरे मैंने भी वहां पे इन्वेस्ट किया है, वहां पे अच्छा रिटर्न आ रहा है. आप जो बताई जो बातें होती है उस पर बिलीव करते हो और अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करते हो. उसी को भेड़ चाल कहते हैं. दैट इज हर्ड मेंटेलिटी. दिस लॉस अवर्शन. इन्वेस्टमेंट में इतना सारा रिस्क है. आपको पता है कि अगर आप 5,000 का अगर रिस्क लेते हो तो यू विल गेट अ 5,000 रुपीज. बट यू डोंट वांट टू गेट दैट 5,000 रुपीज. इंस्टेड ऑफ यू आर थिंकिंग दैट मेरा 5,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो that is a always thinking, these people are always thinking about loss. That is fear. Then overconfidence. Next is overconfidence. One time you have taken a decision and accordingly you have invested, you got a really good return. आपने 10,000 लगाया था, आपने देखा कि 10,000 पे आपको 15,000 रुपए, मतलब 5,000 रुपए का अच्छा खासा रिटर्न आया हुआ है. एंड देन यू बिकम अ सुपर कॉन्फिडेंट that you know inside out about the investment, and on that same avenue or same instrument you are putting entire your amount, that lakh of rupees, let's assume. And what happens, market is not favorable and that is not going to give you a return. जो आपका 1,00,000 रुपया था उसकी वैल्यू 70,000 हो जाती है या 70,000 हो गई. there is a loss of 30,000 of rupees. that is called as over confidence bias. just by doing some getting one time one good return, accordingly putting all your investment into that single option, again this is called as the greed. Now recency bias. आपने किसी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, ओके, इट हैज परफॉर्म वेरी वेल, बट लास्ट 2 क्वार्टर्स हो गया है, 4 साल 4.5 साल अच्छा परफॉर्म किया है, ओके, गिवन अ वेरी गुड रिटर्न, बट लास्ट 2 क्वार्टर हो गया है, इट इज नॉट परफॉर्मिंग टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एज पर योर एक्सपेक्टेशन, इट इज नॉट परफॉर्म. सो इमीडिएटली फियर क्रिप्स इन योर माइंड. आपके दिमाग में आ जाता है whether my investment is right or I need to shift to some other avenue. एग्जाम्पल के तौर पे, आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया, आपकी 1,00,000 रुपए की जो वैल्यू है वो वैल्यू बढ़ के हो गई थी 1,75,000 रुपए. लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर में ऐसा हो गया कि वैल्यू हैज डिक्रीज फ्रॉम 1,75,000, इट हैज डिक्रीज टू अ लेवल ऑफ 1,65,000. सो यू आर थिंकिंग अबाउट देयर इज अ दिस नोशनल लॉस that is 10,000 rupees against this 65,000 which you got as a capital appreciation over 4.5 years, that you are not considering that 65,000, you are only considering about this 10,000 कि क्यों अभी ये तो गिर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि अभी गिर ही जाएगा, प्राइस और कम हो जाएगा. अगेन फियर विल गेट क्रिप्स इन. ओके, दैट इज कॉल्ड एज रिसेंसी बायस. नाउ जब आप इन्वेस्ट करते हो, इतने सारे जो हमने मतलब बिहेवियरल बायसेस देखे, उसके बाद भी एक बिहेवियरल पैटर्न होता है.
दैट इज इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। क्लाइंट को कितना भी आप बताओ, लेकिन जो उसको फेवरेबल लगता है अकॉर्डिंगली ही ओनली टेक्स डिसीजन। जो आईटी वाला है उसको आईटी ही फेवरेट स्टॉक लगते हैं, ही विल इन्वेस्ट इनटू आईटी कंपनीज, दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। देन अनदर इथिकल स्टैंडर्ड, there are few people who are very much particular, extremely disciplined in their investment, they will get really good return. Even they do have a different some people do have a different ethical standard, that they will not invest into leather companies, they will not invest into hard drinks companies, okay, wine companies, they will not invest into tobacco companies. So there are different ethical standards which people are following, that is risk profiling. बट ये सजेशन देने के लिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपने किस प्रकार से इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बताने के लिए हमारे पास एक क्लाइंट का प्रोफाइल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज रिस्क प्रोफाइलिंग, जिसमें क्लाइंट की नीड क्या है, ओके, व्हाट रिस्क दैट ही इज एक्चुअली टेकिंग, ओके, देन व्हाट ही वांट्स, what is his risk attitude and afford, okay, what risk that he can afford, what is his capacity or what is his willingness to afford, that we need to consider, and for which in companies generally we are preparing risk profile like this। जो कंपनी में हम लोग जो कंपनी में डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल जो प्रोफाइलर्स जो यूज करते हैं, इट इज वन, आई हैव टेकन वन फॉर्मेट ऑफ दैट। So demographic, that is age, gender, job title, income, education level, family status, it comes under demographic। then geographic, city, area, region, country, कहाँ रहता है, किस locality है, कैसा घर है, everything that we consider over here। then psychographic, most important, lifestyle, what is his lifestyle, what are his goals, what are his pain points, what are his habits, value system, then what are his interests, that we generally consider, okay। and the last most important part, and that is his behavioral pattern, what level of engagement that we are establishing with the customer। मतलब आप कस्टमर को अपॉइंटमेंट के लिए टाइम मांग रहे हो एंड कस्टमर इज रिफ्यूजिंग एवरी टाइम, ओके, ही डोंट वांट टू मीट यू एट ऑल, it means customer is least interested in that। then readiness to buy, whenever you are meeting the customer and you are pitching any product, okay, how frequently that he is ready to buy the product from you। then his previous purchasing history, कस्टमर ने आपसे कौन से प्रोडक्ट लिया है, क्या ऑल प्रोडक्ट दैट कस्टमर हैज टेकन, दैट आल्सो नीड टू बी कंसीडर्ड। देन प्रोडक्ट यूसेज, कस्टमर के पास कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपने दिए हुए हैं, वो हमें देखना चाहिए। देन सेटिस्फैक्शन, whether customer is really happy with the product that he is utilizing or he is having or he has invested into it, okay, different asset classes, whether he is really happy or not। loyalty, जब रिपीट सेल आता है या रिपीट इन्वेस्टमेंट की बात आती है, वेदर कस्टमर इज एक्चुअली आस्किंग यू और वेदर कमिंग टू यू, दैट नीड टू बी कंसिडर। हाउ लॉन्ग ही इज स्टे इन्वेस्टेड विथ यू, दैट आल्सो नीड टू बी कंसिडर्ड। एंड मोस्ट लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अटेंशन रिक्वायर्ड। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, दे आर वेरी अटेंशन हैवी पीपल, they want you to pick up a call in first ring itself, okay, and after that they will give you whatever that you want, okay, but they want entire your attention all point of time। there are few people those who don't need any attention, वो आपको कहते हैं अरे भाई मुझे फोन नहीं किया तो भी चलेगा, जब भी मुझे इन्वेस्ट करना है आई विल डेफिनेटली कम टू यू ओनली, ओके। सो इन द रिस्क प्रोफाइलर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस पार्ट। तो हम क्या करते हैं, हम कॉर्पोरेट में ये करते हैं कि जब किसी क्लाइंट से मिलना है तो वी first, before meeting that client, we will go through the risk profiler of the customer and then understand his entire psyche and his behavioral pattern, his purchasing pattern, everything that we will understand, and accordingly when we will meet the customer, we will pitch what product that we need to pitch accordingly। another, understanding strategic allocation। in asset allocation there are three strategies which we people are using, okay, that is strategic asset allocation, tactical asset allocation and rebalancing। in strategic allocation, जब हमें किसी कस्टमर का असेट एलोकेशन करना है, आपने डिफरेंट असेट क्लासेस समझा दिया, आपने कस्टमर का रिस्क प्रोफाइलिंग कर दिया, आपने कस्टमर के जो फाइनेंशियल गोल्स है वो आपने सब समझ लिया है। अभी हमें एक्चुअली कस्टमर का इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। अब वो इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि कस्टमर कितनी रिस्क लेना चाहता है, व्हाट इज हिज रिस्क टॉलरेंस, what is his return expectation and what is the time period or liquidity what is required। and on the basis of this, यहाँ पे एक जो एग्जांपल दिया हुआ है, some part into equity, some part into cash, some part into bonds, some part into real estate, some part into commodity। so accordingly you have diversified the entire portfolio of the customer, and this is called as a strategic allocation as per his requirement। you have diversified, you have strategically choose different sort of assets and as a basket product that you have offered to him, that is called as strategic allocation। then second one is tactical asset allocation। now you have already given different asset allocation to the customer। आपने एक पोर्टफोलियो बना के क्लाइंट को ऑलरेडी दे दिया है,
And now you come to know that over a period of time, market is a dynamic. So continuously a lot of changes that happens in the market. And in tactical asset allocation, ultimately the purpose is that we need to give we need to give, better returns at a lower risk to the customer. So in such scenario, in tactical asset allocation, as per the situation, अभी इकोनॉमी में सपोज ऐसा होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, सो ऑटोमेटिकली एवरीबडी विल थिंक as since the rate of interest is increasing, so definitely all the financial companies will definitely do well. Okay, so this is the general thinking. So accordingly, people will invest in they will take out the money, whatever additional asset allocation that they need to do in equity, they will put this into financial companies only, wherein with the expectation that they will get a better return since rate of interest in economy that is increasing. So this is a sort of tactical. This is in another word, it is called as a dynamic asset allocation as well. Then third one, that is rebalancing. Now you have given a portfolio to the customer. Now let's assume customer is of 55 years of age, so you have given him a hybrid fund. Okay, 50% into equity, 50% into debt. Now let's assume customer has invested 2 lakhs of rupees and in his equity he got a return of 20%. मतलब इक्विटी में 1 लाख रुपए डाला था, वो 20,000 रुपए का उसमें रिटर्न आया है, लेकिन जो डेट में डाला था वहां पे 5% का ही रिटर्न आया या 10% का रिटर्न है। तो 1 लाख पे 20,000 का रिटर्न आया और दूसरे 1 लाख पे जो बॉन्ड में डाला था उसमें 10,000 का रिटर्न आया। मतलब टोटल जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना हुआ, 1 लाख का ये 1,20,000 हो गया, दूसरे 1 लाख का 1,10,000 हो गया, मतलब टोटल मिला के 2,30,000 हो गया। बट that is not into 50-50%. So here in this case, what he need to do, he need to sell out of this 1,20,000 rupees, he need to sell 5,000 rupees, okay, and plug that amount into debt fund. Okay, so क्या होगा, बाइफर्केशन ऐसा होगा कि in equity 1,15,000 and into debt again 1,15,000, again it will come at a same level. So the asset allocation will remain intact at 50-50%. That is called as rebalancing. Okay, and professional people generally they do this rebalancing, okay, for their investors. Now that another important part, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या हम इतना रिस्क हम देख सकते हैं क्या, क्या हम सब जो फैक्टर्स है वो इवेल्युएट कर सकते हैं क्या, क्या हमें डिफरेंट पूरा एसेट क्लासेस के बारे में जानकारी है क्या, क्या हम उसके साथ जो रिस्क फैक्टर्स है उसको एसेस कर सकते हैं क्या, क्या हम मार्केट में जो इवेंट हो रहे हैं क्या इवेंट को हम ध्यान रख सकते हैं क्या, ये अगर हम सब कर सकते हैं, इफ यू हैव टाइम टू डू दैट, देन डेफिनेटली इफ यू आर विलिंग टू डू दैट, देन डेफिनेटली यू डू योरसेल्फ, ओके, डू इट योरसेल्फ, योर ओन इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो करने के लिए इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो, आप आपके ही बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट करके एडिशनल कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हो, अगर आप उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे एंड आप ये एनालिसिस करते हो कि ये अगर आपने किसी को आउटसोर्स कर दिया, वो आउटसोर्स की कॉस्ट कितनी है, हाउ मच फीस दैट यू विल इनकर इफ यू आउटसोर्स इट टू सम प्रोफेशनल, इफ यू डू दिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, if it is beneficial to you, then do it yourself. It is not beneficial to you, then take professional help. But when you are doing it yourself, then just remember behavioral biases. Okay, जब हम खुद का इन्वेस्टमेंट होता है, हमारे इमोशंस हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे भारी होते हैं और हम करेक्ट डिसीजन कई बार नहीं ले सकते हैं। So depending on your own choice, you can decide about do it yourself or take a professional help. Okay, now guys, we come to the last part, that is test your knowledge. Correct, whatever that we understood up till now, we will see to it to what extent that we will be able to answer all these questions. The first one is, which among the following investment avenues does not affect income on regular basis? The first option is real estate, second one is physical gold, stock and debenture. ये चार ऑप्शन में से ये ऐसा ऑप्शन हमें बताना है कि जहां पे हमें रेगुलर बेसिस पे इनकम नहीं मिलता है। ओके, क्या हो सकता है ऑप्शन? रियल एस्टेट, फिजिकल गोल्ड, स्टॉक और डिवेंचर। द करेक्ट आंसर इज फिजिकल गोल्ड, क्योंकि रियल एस्टेट आपने किसी को रेंट पे दे दिया है तो आपको किराया आता है, स्टॉक में आपको रेगुलर डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर्स में आपको इंटरेस्ट मिलता है, ओके, इंटरेस्ट वारंट्स मिलते हैं। लेकिन सिर्फ फिजिकल गोल्ड जब तक आप बेचते नहीं हो तब तक के आपको उस पर कोई इनकम नहीं मिलता है। Which among the following asset categories to be purchased for consumption purpose and for investment also? Real estate, stock, bond and debentures. Definitely it's a real estate only. कि रियल एस्टेट आप खुद के लिए परचेस कर सकते हो, जो उस घर में आप रह सकते हो, रियल एस्टेट में आप रह सकते हो, या आप इन्वेस्टमेंट पे भी दे सकते हो, सॉरी एज एन इन्वेस्टमेंट करके भी यूज कर सकते हो। किसी को आपने परचेस कर लिया और रेंट पे दे दिया, जहां पे आपको किराया आते रहेगा। ओके, नाउ थर्ड वन, द परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी changes on account of which of the following?
जो हमने ऑलरेडी विद एन एग्जांपल हमने देखा है. ओके, एसेट एलोकेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज इन्फ्लेशन, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी डिक्रीजेस. व्हाट इज द रियल रेट ऑफ रिटर्न? The return that investor gets after payment of all expenses, the return that investor gets after taxes, the interest that investor gets after adjusting the risk, and the return that the investor gets after adjusting inflation. So we have already discussed about it. Okay, guys, tell me. The correct answer is the return that the investor gets after adjusting inflation. हमने जो fixed deposit का example लिया था. Yes. Now the last one. When the interest rate in the economy increases, the prices of existing bond. I have already, explained in my, previous this thing, videos itself. The prices of existing bond decreases as the interest in the economy increases. So the prices of the bond decreases, right? So go through this video again and clear all your concepts. Okay. All the best. Do comment and subscribe to my channel to get, further videos on this mutual fund distributor 5A module. Thank you. Thanks a lot.